ओके चलिए शुरू करते हैं। लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट। 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं एडिशनल एक्सरसाइज के एंड वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5.37। आपका हो चुका है बट एक बार वापस डिस्कशन करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग में नहीं आया था। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5.37 इन द क्वेश्चन वी हैव अ डिस्क is revolving at a speed of 33 1/3 revolution per minute, राइट इतने स्पीड से डिस्क रोटेट हो रहा है। अब इस डिस्क के ऊपर आपने दो कॉइन रखे एंड कॉइन्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एक कॉइन 4 सेंटीमीटर पे है, एक कॉइन 14 सेंटीमीटर के ऊपर है, राइट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ record। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड record is 0.15, which of the coin will revolve with the record? What will happen as you rotate the disc? Everything on the disc will experience the centripetal force away from the center, right? Okay, and due to the centripetal force object will try to move away from the disc, right? But the friction will try to hold that particular coin on the disc, right? So if you write the free body diagram of the coin, if it is a coin is rotating on the circle, let's say of radius r. So the forces acting on the coin, mg act vertically downwards, normal reaction upwards. Due to circular motion there will be centripetal force away from the center, which is m omega square r. Centripetal force away from the center, that is m omega square into r, and the friction will try to oppose the centripetal force, राइट तो जब तक ये फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तब तक कॉइन चिपका रहेगा, राइट जैसे ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया द कॉइन विल फ्लाई ऑफ। सो द लॉजिक बिहाइंड द फ्रिक्शन इज इफ दिस कॉइन वांट टू स्टे स्टेशनरी, राइट देन फ्रिक्शन शुड बी मोर देन m omega square r. This friction should be more than or equal to m omega square r, right? Friction is mu into normal and normal equal to m into g. M cancel, you got a condition mu g should be greater than equal to omega square into r, right? So this mu g divided by omega square should be greater than equal to r. So r should be less than equal to mu g by omega square. Coefficient of friction is 0.15, gravity is 9.8, omega is angular frequency. You have angular frequency 33 1/3 revolution per minute. That will make 99 plus 100/3. One revolution is 2 pi radian and minute is 60 seconds. So on converting this value, omega is 3.48 radian per second. We'll put this omega here 3.48, square करेंगे उसका, and on simplifying you get the radius is less than equal to 0.121 meter. That means radius should be less than equal to 12.1 centimeter. That means the coin placed within 12.1 centimeter are safe, and the coin placed away from 12.1 centimeter at the distance more than 12.1 centimeter will fly off because they will have friction less than the centripetal. So friction will not be able to stop that coin which are at a distance more than 12.1. So we have two coins given, one on 4, other is 14. So the coin on 4 centimeter is safe, it will rotate with the record, while the coin on 14 centimeter it will have a more centripetal force, so it will fly off. So this is the last question we have solved. चलिए अब इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, राइट? और ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन ऐसा है, यू मे हैव सीन अ सर्कस, अ मोटरसाइकिल इज ड्राइविंग इन अ वर्टिकल लूप्स इनसाइड अ डेथ वेल, अ hollow spherical chamber with holes so the spectator can watch from outside. Explain clearly why the motorcyclist does not drop down when he is at the uppermost point with no support from below. What is the minimum speed required at the uppermost position to perform a vertical loop if the radius of the chamber is 25 meter? Right, so you have this kind of the chamber or a track, and the cyclist is moving on this. Right, he is performing a circular loop on this track, and when he is here, he is like this now. Still he will not fall. He is able to perform these loops.
right? Then who is the force which is counter attacking the gravity here? Because due to gravity it will fall down, but he is not falling, he is completing the loops, right? Then who is responsible for the counter attacking the gravity at this point? Centripetal force, right? So if you write the component of the forces on this bicycle at this topmost point, mg is the weight which will always act vertically downwards, right? And if the radius of the track is r and if he has the velocity v, right? So for the circular motion there is always a centripetal force acting away from the center. तो जब ये सर्कल काट रहा है तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगना है? सेंट्रीपेटल. कौन सा होगा ये? एम वी स्क्वायर बाई आर, राइट? तो ये तब तक लूप काटता रहेगा जब तक सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा है. अगर सेंट्रीपेटल फोर्स कम हो गया तो ग्रेविटी की वजह से वो गिर जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? राइट. सो द ओनली टू फोर्सेस इज ग्रेविटी एंड सेंट्रीपेटल. सो वी राइट हियर टू कंप्लीट द लूप. To complete loop at topmost point, mg is equal to mv square by r. At topmost point mg is equal to mv square by r. This m is cancelled, right? Okay, हमें स्टेटमेंट लिखना था ना, who is providing, वो स्टेटमेंट तो मैं लिखा ही नहीं, राइट? तो वी राइट हियर at topmost point centripetal force cancels weight, right? Centripetal force is cancelling the weight. Okay, now to complete the circle, centripetal is equal to weight. Okay, so what do you want to find? We would like to find, last में आज क्वेश्चन पूछा आपको, what is the minimum speed required at the uppermost position to perform a vertical loop if the radius is 25? Let's put the value. Gravity is 9.8. Speed we need to find and radius of the track is 25 meter. Multiply 25 here. What you will get? 25 into 9.8. 250 to 45. Shall I take under root of this? So he must have a speed of 15.65 meter per second or more than this. Then only will be able to complete the loop. If his speed will drop below this, अगर उसकी स्पीड इससे थोड़ी भी कम हुई ना तो ग्रेविटी ज्यादा हैवी हो जाएगा. ग्रेविटी अगर हावी हो गया तो ये गया, तुरंत ही नीचे गिर जाएगा, राइट? तो डेथ वेल के अंदर कोई दूसरा मौका होता नहीं है, क्योंकि 25 मीटर का लूप है. सोचो 50 मीटर का हाइट होगा, ये 50 मीटर मतलब बहुत बड़ा होता है, राइट? लगभग 6 या 7 फ्लोर गिर सकता है वहां से. तो स्पीड इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग टू लुक एट, राइट? सो स्पीड शुड बी, इन दिस केस द स्पीड शुड बी मोर देन 15.65 मीटर टू परफॉर्म अ सेफ लूप, अदरवाइज हो गया. चलिए बेटा, अगला सवाल तो इससे इंटरेस्टिंग है. चलिए अगला सवाल मैं आपको समझा देता हूं क्या क्वेश्चन है. सुनो, एक सिलिंड्रिकल चेंबर है, राइट? और उस चेंबर में वॉल के साथ एक इंसान है, इस तरह से, राइट? एक इंसान है वॉल के साथ. अब हमने क्या करा, इसको घुमाना शुरू किया विथ सम स्पीड ओमेगा, राइट? पर हमने प्लेटफॉर्म को हटा दिया. क्या करा हमने? प्लेटफॉर्म को हटा दिया. ये गिरना नहीं चाहिए, प्लेटफॉर्म हटा दिया, पर ये गिरना नहीं चाहिए. हाउ इज इट पॉसिबल? सेंट्रीपेटल फोर्स, क्योंकि ये घूम रहा है. तो फोर्सेस कौन कौन से आएंगे? चलो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स आएगा? सेंट्रीपेटल. सी वी हैव एंगुलर स्पीड गिवन, ओमेगा दिया है, रिवॉल्यूशन पर मिनट. सो वी विल यूज द फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आर. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एम ओमेगा स्क्वायर आर, बिकॉज एंगुलर स्पीड आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट? चलिए, और क्या लगेगा नीचे की तरफ? mg. Who will counter attack this mg? Who will counter attack this mg? यही तो क्वेश्चन है. Who will counter attack this mg in this question? Friction.
बेटा जहां पे दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं वहां क्या लगता है? फ्रिक्शन। mg नीचे गिरा देगा, उसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। चलिए दो सरफेस कांटेक्ट में ये क्या आएगा? नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल टू दी सरफेस। Okay, so what you can see here, friction is balanced by mg. Can you see? Friction is balanced by mg and normal is balanced by m omega square r. Normal is balanced by m omega square r. Agree? Yes. चलिए, what is friction F? F equal to mu into normal. Friction कितना है? mg. Mu into normal कितना है? m omega square r. m common n cancel. Gravity 9.8. Do we have the coefficient of friction in the question? 0.15. Do we have omega? Omega is in revolution per minute. We will convert 200. Revolution is 2 pi radian. Per minute is 60 second. We have converted here only. हमने ओमेगा इधर ही कन्वर्ट कर लिया, राइट? इट इज रिवॉल्यूशन पर मिनट. वन रिवॉल्यूशन इज 2 पाई रेडियन एंड मिनट इज 60 सेकंड. इनटू कितने पूछा क्या गया आपको? व्हाट इज द मिनिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द सिलेंडर टू इनेबल द मैन टू रिमेन स्टक टू द वॉल? ओमेगा ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में ओमेगा ही फाइंड करना. चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा. इस क्वेश्चन में ओमेगा फाइंड करना है. A 70 kg man stand in contact against the inner wall of hollow cylinder drum of radius 3 meter, rotating about its vertical axis with a 200 revolution per minute. The coefficient of friction between the wall and its clothing is 0.15. What is the minimum rotational speed of the cylinder to enable the man to remain stuck to the wall when the floor is suddenly removed? तो आपको ये ओमेगा फाइंड करना है. अभी आप इतने स्पीड से घुमा रहे हो, राइट? बट आपको अगर प्लेटफॉर्म हटा देना है तो कितने स्पीड से घुमाना चाहिए ताकि इंसान नीचे ना गिरे? So you want to find the omega. कितना है रेडियस? 3 मीटर. Put this radius equal to 3 meter. Tell me what you are getting. Divide करो नीचे 9.8 by 0.15 into 3. What is it? 27. That's the omega square. Take under root. 4.66 radian per second. So if you rotate it with the speed of 4.66 radian per second, then this person will remain stick to the wall. वो गिरेगा नहीं, वो चिपका रहेगा वॉल के साथ ऐसे ही. समझ आए फोर्स के कंपोनेंट? सर्कल घूम रहा है, सेंट्रीपेटल, नॉर्मल, mg, and mg को अपोज करेगा फ्रिक्शन. नाउ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg, n इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r. Then you can write f equal to mu into n and then solve कर लो. You can get the answer. Can you understand this everyone? Yes. Sure एकदम? Yes. चलिए अगला सवाल. A thin circular loop. A thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular frequency so that a small bead on the wire loop remain at its lowermost point for omega less than equal to g by r. What is the angle made by the radius vector joining the center of the bead with the vertical downward direction for omega equal to this value? The question क्या? You have a circular loop of radius r, rotate about its vertical diameter. तो ये हो गया उसका diameter, and the loop is rotating about this diameter. Loop is rotating about this diameter, right? Can you understand how the loop is rotating? Kadalana. This is the loop, and the loop is rotating like this about the diameter. Do you understand this? Yes. Can you understand this? Loop is rotating about its diameter. ऐसा रोटेट कर रहा है. और अब इस लूप के अंदर छोटा सा बीड है. इस लूप के अंदर क्या है? छोटा सा एक बीड है, राइट? बीड मतलब जानते हो ना, मोती. चलो इसके अंदर एक छोटा सा बीड है, ऐसा मोती है. आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि द बीड ऑन द वायर लूप रिमेन एट इट्स लोअर मोस्ट पॉइंट. बीड रिमेन एट इट्स लोअर मोस्ट पॉइंट फॉर ओमेगा लेस देन इक्वल टू जी बाय आर. अगर एंगुलर स्पीड जी बाय आर से कम हुआ, अंडर रूट आएगा वहां पे. अगर ओमेगा अंडर रूट जी बाय आर से कम हुआ
तो ये बीट जो है वो नीचे का नीचे रह जाएगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा, ये आपको प्रूव करना है। और सेकंड केस में आपको ये बताना है, पूरे का अंडर होता है। सेकंड केस में आपको ये बताना है कि अगर आपने स्पीड इतना रखा है, √2 टाइम्स जी/आर रखा है, तो बीट कितना एंगल बनाएगा, ये आपको फाइंड करना है। ओके, चलिए, so we'll have to write the component of the forces acting on a bead. तो बीट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? Which forces will act on a bead? Which one? Gravity will always act vertically downwards. Any other force? Centripetal force. Which other force will act on it? Normal force. So normal is acting. Anything else? Okay, now if you talk about this particular point, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम बीट को थोड़ा ऊपर ला देते हैं, हम बीट को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। अगर ये घूमेगा एकदम स्पीड में तो उसके अंदर जो बीट है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट? ओके ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ना बीट को थोड़ा सा ऊपर लेके स्टडी करते हैं, देन वी कैन गेट ऑल आवर आंसर्स। चेक आउट, राइट? सपोज ये घूम रहा है, इसकी वजह से ये बीट यहां पे आ गया है। अब सोचो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये बीट कितने सर्कल में घूम रहा होगा? बीट का सर्कल ये बनने वाला है। बीट विल रोटेट अबाउट दिस सर्कल, यस और नो? लेट्स से दिस रेडियस इज r, दिस रेडियस इज r। चलिए, बाहर की तरफ क्या लगना है? सेंट्रीपेटल, m⍵² इंटू r। और यहां पे क्या लगना है? नॉर्मल फोर्स n, क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में ऐसा है, तो नॉर्मल फोर्स विल बी लाइक दिस। इस नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट कर देंगे, राइट? लेट्स से कि ये जो आपका सेंटर है और ये वाला जो एंगल है, सपोज लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, राइट? ओके, देन दिस n will have, this normal will have two components, एक ये और एक ये। See it carefully. If this angle is alpha, then this angle is also alpha. Can you see alternate angles? So this component is n cos alpha, adjacent side, and this component is n sin alpha. Okay. Now talk about the forces acting on this. चलो, n cos alpha को बैलेंस कौन कर रहा है? mg। n cos alpha को बैलेंस कौन कर रहा है? mg। और n sin alpha को बैलेंस कौन कर रहा है? m⍵² इंटू r, राइट? लेट्स टेक रेशियो ऑफ दिस टू, इन दोनों का रेशियो करते हैं, ठीक है? फिर क्या आता है देखते हैं। सो आई कैन राइट हियर n sin alpha is m⍵² r, n cos alpha mg, mm cancel, n cancel, right? So you got tan alpha is equal to ⍵² into r by g. Now what is small r? Small r आपको रिलेट करना पड़ेगा, स्मॉल r आपको रिलेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपका इस तरह का छोटा सा ट्राइंगल बनेगा। ये कैपिटल r है, दिस इज द कैपिटल r, रेडियस ऑफ द लूप। ये क्या है? कैपिटल r है, रेडियस ऑफ द लूप। एंड स्मॉल r क्या है? जितने रेडियस में आपका बीट रोटेट कर रहा है, दैट इज स्मॉल r। ये एंगल कितना है? अल्फा। सो कैन आई राइट साइन अल्फा इक्वल टू opposite side by hypotenuse, so small r is equal to r into sin alpha. Can I write like this? Yes. So what will you get here? Tan alpha equal to ⍵² by g, और r की जगह हम क्या लिख देंगे? r into sin alpha, substituted। चलो, tan alpha क्या होता है? sin alpha by cos alpha। tan alpha is sin alpha by cos alpha, sin alpha is cancelled,
So what you have obtained? Do I have one more slide? Yes. What I have obtained? I have obtained omega square r by g. Omega square capital R by g equal to 1 by cos alpha. Omega square r by g equal to 1 by cos alpha. इसको इन्वर्स कर लो तो जो गेट cos alpha equal to g by omega square into r. ये मैंने ना फॉर्मूला बना लिया, ये मेरे मतलब का फॉर्मूला है, राइट? वापस एक बार समझेंगे, ओके वापस एक बार समझेंगे। चलो यहां पे वापस फिगर बनाते हैं, ठीक है? ये लूप था, लूप ऐसे घूम रहा है, सबने समझा? नीचे बीड था, जैसे ही आप घुमाओगे सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बीड बाहर निकला। सपोज बीड बाहर निकल के इधर आया है, तो इस बीड पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो चेक करना है आपको, ठीक है? mg डाउनवर्ड, राइट? बीड इस सर्कल में घूम रहा होगा, बीड इस सर्कल में घूम रहा होगा। लेट्स से इस सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर, ये क्या है? रेडियस ऑफ द लूप कैपिटल आर। बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल। यहां पे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो ये क्या कंपोनेंट हो जाएगा? n cos अल्फा, बिकॉज दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, अल्टरनेट एंगल्स। और ये क्या कंपोनेंट हो जाएगा? n का n sin अल्फा, ठीक है? अब n sin अल्फा क्या है? m ओमेगा स्क्वायर r। n sin अल्फा क्या था? m ओमेगा स्क्वायर r। और n cos अल्फा क्या है? mg। n cos अल्फा क्या है? mg, है कि नहीं? है ना? चलो टेक द रेशियो, n कैंसल, यू गॉट sin अल्फा बाय cos अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय g इंटू स्मॉल r। इस ट्राइंगल से हमने स्मॉल r कैपिटल R को रिलेट किया, है कि नहीं? तो हमें ये स्मॉल r कितना मिला? कैपिटल R इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा इज कैंसल, सो फ्रॉम देयर यू हैव गॉट cos अल्फा इक्वल टू g बाय ओमेगा स्क्वायर r। देयर यू आर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलिए अब ये बीड, आपको पहला कंडीशन क्या है कि बीड विल नॉट राइज एट ऑल, बीड विल रिमेन एट द लोअर मोस्ट पॉइंट इफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर। चलो बीड अगर बॉटम पे रहेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 0। अगर ये बीड बेटा बॉटम पे रहेगा तो ये एंगल दब के कितना हो जाएगा? 0, राइट? तो लेट मी फाइंड आउट के एंगल 0 कब होगा। फॉर बीड टू remain at bottom most, for bead to remain at bottom most, for the bead to remain at bottom most, अगर बीड को bottom most पर रहना है तो cos अल्फा, आपका अल्फा कितना रहेगा? 0। अल्फा 0 रहेगा तो cos अल्फा कितना रहेगा? 1। ये रहा cos अल्फा, g बाई ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू 1। ओमेगा स्क्वायर को ऊपर ले लो तो g बाई r इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, टेक अंडर रूट ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाई r। दैट मीन्स जब तक आपका ओमेगा लेस देन रहेगा अंडर रूट जी बाई आर से बीट बिल्कुल भी ऊपर उठना नहीं है। यू अंडरस्टूड? जब तक एंगुलर स्पीड इस वैल्यू से कम रहेगा तब तक बीट बिल्कुल भी ऊपर उठना नहीं है, राइट? अब आपको एक और केस दिया है जहां पे आपको एंगुलर स्पीड दे दिया रूट 2 जी बाई आर, उसके लिए आपको एंगल बताना है। चलो एंगल बता देते हैं, राइट? सेकंड केस, इफ ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g डिवाइड बाई आर, अगर ओमेगा ये वैल्यू दिया अंडर रूट 2g डिवाइड बाय आर, तो एंगल कितना बनेगा? चलो ये रहा फॉर्मूला, cos अल्फा इक्वल टू g डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये हमने बनाया फॉर्मूला गर्मा गर्म। ओमेगा क्या रखेंगे? अंडर रूट 2g बाय आर, क्या करना है उसका? स्क्वायर इंटू क्या है? r, g डिवाइड बाय, चलो अंडर रूट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 2g बाय आर इंटू आर, आर आर कट, जी कट, क्या है ये? cos अल्फा। cos अल्फा कितना आ गया बेटा? 1/2, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। तो बीट 60 डिग्री एंगल पे उठ जाएगा अगर आप इतने स्पीड से घुमाओगे तो। जितना स्पीड आप बढ़ाते जाओगे ना उतना बीट धीरे धीरे ऊपर आएगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको जो स्पीड दिया है उतने स्पीड पे बीट कितने एंगल पे होगा? 60 डिग्री पे होगा। आया समझ में? एडिशनल एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। क्लियर विद दिस? सो यहां पे आपका लॉज ऑफ मोशन ऑफिशियली कंप्लीट होता है विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो। फटाफट इसको लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे।